So hello everyone, in today's video we're going to talk about the complete job interview process and all the doubts that students generally have who are generally studying in college. So today I'm honored to have Piyush sir from GFG on my channel for this podcast. So many of you have seen him on taking the mock interview on the GFG channel. So he's a very good mentor and sir, can you please introduce yourself so that the students who generally don't know about you can know about your educational background and your work experience? Sure. First of all, thank you, Vasu, for inviting me on your channel and giving me this opportunity, right? And it's my pleasure to be here. And I would love to share the experiences and my experiences and the things that I've learned from others' experiences as well. And first thing is introducing myself. As all of you know that I'm associated with Geeks for Geeks as a course mentor. And here I am taking the responsibility, like we have child channel, we have GFG main channel, and we have a child channel which is called Geeks for Geeks Practice, right? So I'm handling the Geeks for Geeks Practice channel. All the activities that are done on that channel are being planned by me, right? Me and my team actually. And also with that, I am working on several courses, right? I have developed a low level design courses which gives you an idea about how you can use the object oriented analysis things for designing real world applications, right? And I've also worked on Python programming, like how we can use Python, how we can introduce Python programming to the beginners so that they can create magical projects, right? And also I have developed one project, one course in which we have tried to taught the application development to the kids as well, like how they can start those mobile application development careers, right? And with that, I do take data structure and algorithm classes, which are the specialized classes of Geeks for Geeks. So these are certain areas that I'm working with these are certain roles and responsibilities that I'm taking care with Geeks for Geeks. Apart from that, I was senior software developer at Payu Payments Private Limited, and where I used to take, like I was in front end development, I was in the complete stack development, which you call full stack development, right? And I was also into mobile development as well. So taking care of their products like SDKs and custom browser were two products that I was taking care of. And yes, if you talk about my academics, I have done my master's in computer science from Delhi Technological University. And why I'm sitting over here with Vasu is could be like I have been a placement coordinator at Delhi Technological University. So those experiences can be also very useful for you, right? So this was about like a small top view of my academics as well. So I hope everyone got a glimpse of his magical career and really a very long career that he has gone through. So coming to my main question, please can you explain the placement procedure in detail with the eligibility, because many students are really confused about the eligibility of the placement, that I have got 60%, I have got less than 60%, so can I sit for the placement? Yeah, generally what happens, see, this question is very generic, I must say. Like I cannot give very specific answer to this question, but yes, if you ask me, generally 60% is the criteria of majority of the companies, if you think, right? Like it may vary, right? It generally what happens when companies used to appear for placements, so they may change this criteria. Like when I was placement coordinator, we have seen that companies are shifting this benchmark or threshold, like plus minus 5. So if some company has suppose 75% criteria, and they are coming to your campus, and they see that a less number of students were shortlisted, right, were able to qualify this threshold, then they can actually reduce this criteria as well. So this is quite flexible when companies are coming for placements. But when you are applying offline, they are quite rigid on it, right? When the line they have drawn is quite strict line, and they don't change it. So it depends, like eligibility depends when you're applying online, like on campus or off campus. So first thing is this, and it varies from companies to companies, right? So generally what happens, some companies wants, like they believe
that when you are academically good, then you might be good in other parts as well. So this could be certain idea in their mind, right? That's why they keep it to 75 or 80%, right? But generally certain companies believes that the numbers does not matters, right? But there should be certain minimum criteria that must be fulfilled, though, so they keep it 60. So it depends on you that what company you are looking for, and you should verify whether that company has those what benchmarks, what threshold this company has in terms of eligibility, that you need to make sure. And you need to like prepare as per your company requirements only, like what is your dream company, what company you are looking for. Like you should not be generic, right? You should not be open, like whatever company will appear. Like this generally what happens, students are confused, right? They think that whatever company will come to the campus, I'll appear for it. But your strategy should be, you should be filtering out certain number of companies, checking out their eligibility criteria in previous years and previous colleges they have gone through, and after that you should be checking that whether those criteria are fitting on you as well or not. Then you should be sitting for those companies. Like you should be specific, your choice should be specific when you are appearing for the companies, right? And yes, you need to check, like, because as I already said, the eligibility criteria is different. Like it is the first level of filter, right? So it is different for different companies. But yes, if you are targeting very good companies, so their thresholds are high, like it keeps on increasing. After that it comes like when you have cleared this threshold, generally companies conduct a technical written round or a technical examination round, you can say, right? In which now it also differs, right? Generally what happens, certain companies do complete MCQ depending related to your computer science subjects, right? And other companies, what they do is they have certain number of MCQs as well as coding questions into it, right? So it could be like, I have seen the companies like Samsung Global Aptitude Test, if you see, they have a complete MCQ questions and second round for technical coding questions. And other companies might have it like n number of questions plus 2 or 3 coding questions in the same test, or this test generally ends for 2 to 3 hours, right? So when they include the coding questions, it could be 3 hours test, and when they include complete MCQ, then they divide it into like 1 hour for MCQ test and 2 hours for coding test. This is what they do. And after that you go to those technical rounds of interviews. After you filtering, like go through these filters of MCQ questions and the coding questions, you move to the technical PI rounds, personal interview rounds. And that also depends number of rounds, like they could on the companies, right? So generally when you are targeting like I must classify the companies, right? It should be A plus A, like this super companies, right? The packages above 10, I must say they are being put into the category of super company. So I have observed this thing, right? Those companies which are offering you less package or which falls in the lower category, they have more rounds of interview as compared to the companies, like they are able to filter out in 2 or 3 rounds maximum. So I hope you have got the complete idea of the placement procedure. So my next important question to you, sir, is that many students here are from non-CS background like BCom, BSc Maths, BSc Physics or BSc Chemistry. So how can they excel in placements? So any guidance or any roadmap for them? Yeah, this could be quite typical question, right? Because what happens is when you are from non-CS background and you're targeting an IT company, right? That means either you have seen some of your batchmates or some of your friends that they are getting good packages. Either you are attracted towards the good packages that your friends are getting, your relatives are getting, right? But it was not your choice. So you want to get into this field because of those like what advantages, what perks your friends are getting, right? But if this is the case, you, like I must say, you are not doing there are very less number of chances that you will make through it, right? But yes,
if it is clear to you from the first year only, you have taken exam like entrance into BSc something, right? And you know that I would be going into some IT company, then you can plan your years. Like the preparations has to start from the beginning only. It can't be done like, because it becomes very typical. You cannot prepare for an IT company in just 2 or 3 months. It will take time, right? And when you will give certain time, certain amount of time required for certain concepts, then yes, clearing these companies will become very easy, because they are not bounded. They don't want the students only from CS background. They are open. Like if you are good at coding and you belong to chemical, does not matter to these companies, right? They will allow you to enter. So they are not prohibiting you. They are not stopping you to come in, right? But the thing is, are you prepared? Are you prepared to fight with those CS students who are also appearing for those interviews? So your preparation has to be more than the CS ones, because see, for companies, two people are coming to me, one from CS, one from non-CS, right? I will definitely prefer CS1 because I have that coding work for me, right? My preference would never be the non-CS one, until and unless you prove that you are better than that CS1 who is applied, right? So your preparation has to be harder, your preparation has to be better, and for that you need to have a plan. And that plan could be that you need to start working on certain programming things. You need to pick up certain programming language and have a very good experience on it, have a very good projects developed on it, first thing, right? Then you need to work on, see, simply coding won't help. You need to be into development as well. So if you have worked on certain, you have developed certain applications, mobile applications, it could be web applications, right? It will give you an advantage to crack, like to showcase in your resume and impress the interviewer, or the one who is looking, the target, looking to recruit you, right? So you have to make your resume impressive with your, like today it has become very easy, right? You can participate in different events on the code shifts. You can showcase your stars, right? I am 5-star, so I won't be checking you out, right? If you are 5-star coder at code shift, I can easily say, yes, you might be coding, you might be participating in competition, and gives me the first impression, yes, this person should be given the chance to move to next round, right? And your resume will be filtered. And if you have developed certain projects, certain applications which actually helps user to visualize your coding skills, then yes, again you will get the chance. So first thing is, you need to make your space where all the CS people are there. If you want to make the space, your resume should have those skills, or those projects showcasing your skills, right? And then after getting that, getting this first step, when you go through this first step, right, then you become equal to participate in those coding competitions with non-CS students as well. And yes, if you have worked hard on these programming parts and the development parts, you will be able to crack it. It's not very tough, I can assure you this. But if you will give it a certain amount of time that is required, right, then definitely it will be very easy for you. It is not going to be very tough. So thank you, sir, for giving such plenty of information to the non-CS background students. So my next important question to you is that many students are here from tier 3 colleges or tier 2 colleges, and they generally complain that not many big companies like FANG or other big companies do not come to their college. So how can they also crack big companies, because it's very tough to compete in off-campus opportunities. So what's your opinion on that? If I take this question, Basu, I will love to say that I am also from the tier 3 college, right? So I did my BTech from a tier 3 college. But when I saw my friends, those who went to like tier 2, tier 1 colleges, I was always in connection with them. I used to ask them that what is being taught over there, right? So if you think of the course curriculum, nothing is different, right? Same thing is being taught to everyone, either they are from tier 3, tier 2, tier 1. The only difference that I feel is your alumni batch, right, and your seniors, right?
you get a lot of information. Your seniors get the information from seniors, right? And you get the information from your seniors. And this is what actually makes the difference in tier 3, tier 2, tier 1. Like the course wise, curriculum wise, there is no difference. I cannot say. There might be a slight difference, but it is not exactly one. But what has an impact is you have good seniors, you have a good alumni batch connections, right? You can target those there. So what you need to do is, when you are from tier 3, you need to make those connections. You need to figure out the people, because you are not getting that alumni batch. You are not getting those seniors who are placed in Apple and Google, right? But because social networking is very widely spread today, right? You can connect with people on LinkedIn, right? You can figure out certain people from nearby colleges, or friends of friends who have been placed in good companies, right? You can look for those people, can ask for their guidance, like how they prepared, right? So today you cannot make an excuse that I am from tier 3 and I am not getting chances, because chances are open for everyone. These companies are not restricting opportunities for like certain reserved tier 1 or tier 2 things. They are open for everyone, right? Even if you are from tier 3 and non-CS background, they are open for you as well. So they are not restricting things. First thing that should be clear to you. Second thing is how to do it, right? How to make. So the advantage that tier 2 and tier 1 colleges have is their strong alumni batch and the strong knowledge possessed by their seniors, right? The experiences the seniors have. Now you have to replicate this thing. If you are able to replicate this thing, then you will automatically feel, yes, we are at the same level as they have. So for this, you can search those social networks, the professional LinkedIn networks, where the people are working in these companies. You can see their projects, can connect with them if their interest aligns with your interest. Can ask them that, yes, I want to connect with you and want to work with your project, like your project interests me, right? And I want to contribute into it. It could be a small contribution, but you are contributing to someone else's projects, right? First thing, it increases your connection. First thing, right? Second thing, it gives you an exposure, the industrial experience. In industry, what happens? You are working on, you're adding code to a certain piece of code which is already written, right? So it will give you the same experience. And then third thing, when your product is like, generally what happens when we are schools, like when we are in colleges, our projects lies on our local host only. We are not able to see them live, right? But I can assure you, when your project goes live, it is like when you see a small change, even a small CSS change is, if you'll see that it has been like into the production and people are using it, right? It will give you a very, very like immense happiness. Like my first CSS change went live and it was a very happy moment for me, right? A small CSS change where I changed the color from green to blue, but it is live on the live production site, right? So when you get that feeling, yes, my changes are like, those seniors or those people who have their projects live, try to ask to contribute into their projects. And once you have made the contribution, you have seen that yes, my contributions are in production, then you will get this as a habit, right? It will become an addiction for you, and you will see that you will be more finished developer. Then you will be asking people, you will contributing more, and this will be changing you to a different level. Then you won't be comparing yourself with your batchmates, right? You have moved out of it. You are working with the people who are industrial people, right? So you need to develop this habit. Try to figure out the connections on social networks or on these professional networks. Ask people to work with their projects, right? और एक बार अगर आपको आदत लग गया ना अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो यू विल सी फिर आइडियाज भी अच्छे आते हैं. जनरली वंस वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग, देन आइडियाज आर ऑल्सो गेटिंग बेटर इन आवर माइंड. फिर आप देखोगे कि आपको वो छोटे मोटे आइडियाज आते ही नहीं है. जब प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो यू गेट बिगर आइडियाज इन टू योर माइंड. और जब बड़े आइडियाज आने लगे ना, तो फिर आपको रियलाइज करें फिर आप ये बोलोगे ही नहीं कि मैं टीयर 3 से हूं कि मैं टीयर 2 से हूं. फिर तो आप बोलोगे कि सर मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, बेचना है. यू विल बी आस्किंग टू सेटअप योर ओन स्टार्टअप्स, राइट? फिर वो चीजें करने लगोगे आप. तो आपको जुड़ना है अच्छे लोगों से, ठीक है? वो एक चीज, वो द ओनली एडवांटेज दैट
दे डू हैव टीयर 2 टीयर 1 हैज इज दिस वन ओनली। वो अच्छे लोगों से पहले से जुड़े हुए हैं अपने फर्स्ट ईयर से, राइट। आप भी को भी वो चीज ढूंढनी है, 2-4 लोगों को ढूंढना है जो आपके इंटरेस्ट से मैच करें। वंस यू हैव फाउंड देम, आस्क देम टू लाइक मैं आपको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, फ्री में कंट्रीब्यूट करो, ठीक है, कुछ भी चार्ज मत करो, ठीक है। और वंस यू हैव मेड दोस कंट्रीब्यूशंस, देन यू विल सी कि हाँ आप प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे हो, आप डेवलपर बन गए हो अपने कॉलेज टाइम पर ही। अब बचता है कंपनीज को क्रैक करना, और कंपनीज को जब आप क्रैक करोगे तो एक तो रेफरेंसेस आपके बहुत हेल्प करेंगे, जो रेफरेंसेस आपने बने हैं दोज रेफरेंसेस विल हेल्प यू। एंड ऑल्सो दूसरा, देन यू हैव टू फोकस ऑन योर लाइक सिंपल कोडिंग डीएसए प्रॉब्लम्स ओनली टू क्रैक द इंटरव्यूज। एक बार आपने क्रैक कर लिया और पीआई में पहुंच गए ना, तो पीआई में यू विल हैव द एक्सपीरियंस which will impress the interviewer and you will go through it. So I hope everything is told in detail by sir. So thank you for such a nice explained answer. So my next important question to you is that what's to more focus on in college, because many students are really confused that should they focus on data structure algorithms or should they start with development. So what is your point of view on that? I have seen this question many times, right? मतलब मैं जितने भी लाइव सेशंस लेता हूँ उसमें ये होता है, सर डेवलपमेंट वर्सेस प्रोग्रामिंग कोडिंग, राइट? डेवलपमेंट वर्सेस कोडिंग, like most of the students are confused. Yes, I totally agree with you, Vasu, that students are really confused in this thing. But let me tell you, see, coding, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को अगर साइड में रखो अभी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को मैं रखता हूं साइड में, मैं कोडिंग की बात करता हूं। तो डेवलपमेंट विदाउट कोडिंग इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे को कुछ भी डेवलप करना है, एक मोबाइल ऐप डेवलप करना है, एक रेस्ट एपीआई डेवलप करना है, एक वेब डेवलपमेंट करना है, कुछ भी छोटा सा भी डेवलपमेंट करना है, आई शुड बी अवेयर अबाउट द बेसिक कोडिंग प्रिंसिपल्स, राइट? कोडिंग लैंग्वेज की मैं बात नहीं करता हूं यहां पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोडिंग लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट कोडिंग प्रिंसिपल्स कि हाँ मैं कोड करना है तो कैसे करना है, ठीक है। वी शुड नो हाउ फंक्शन कॉल्स टेक्स प्लेस, वेयर टू यूज रिकर्शन, वेयर नॉट टू यूज रिकर्शन, राइट? विल आई बी यूजिंग फिक्स साइज एरेज और आई शुड बी यूजिंग सेट, राइट, टू सर्च एन एलिमेंट? मेरे को डिक्शनरी यूज करना है, मैप्स यूज करना है, या फिर मैं सीधे स्ट्रिंग्स, मतलब किसी भी और डेटा स्ट्रक्चर। ये नॉलेज आपको तब होगा when you know the data structures very finely, right? आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, मेरे को पता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम, इफ आई नो कि ये एरे कब यूज करना है, लिंक लिस्ट वेयर टू यूज, आई हैव टू यूज स्टैक और नॉट, क्यूज कब यूज करना है, प्रायोरिटी क्यूज कहां पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ग्राफ में ग्राफ की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स ग्राफ की कैटेगरी में फॉल करती हैं, अगर मैं रिकर्शन लगा रहा हूं तो क्या मैं डीपी से इनको इंप्रूव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, राइट? सो इफ आई नो दीज क्वेश्चंस, इफ आई नो दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट, तो उसके बाद, क्योंकि देखिए मैं बात करता हूं अगर आप डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, वहां पर सर्चिंग कर रहे हो, मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूं जो मैंने किया था। मैंने क्या किया, रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करने थे, ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने एक एरे में स्टोर कर लिया, एंड सिंपल, राइट? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, तो आई विल बी स्टोरिंग देम इन एन एरे, राइट? सिंपल। बट जनरली व्हाट हैपेंड, जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड का साइज बढ़ता चला गया, ठीक है, तो मैं देख रहा था कि जो सर्च पेज पे जो सर्च हो रहा था, सर्च बिकम्स वेरी स्लो, राइट? कुछ हम सर्चिंग प्रोसीजर लगा रहे हैं तो इट बिकम्स स्लो। द रीजन फॉर दैट इज, अगर मैं टेबल्स की बात करूं तो हमने इंडेक्सिंग अच्छे से यूज नहीं कर रखा है। अगर मैं बिल्कुल आप एसक्यूएल की बात करूं तो वहां पर हमने इंडेक्सिंग अच्छे से यूज नहीं किया हुआ था, ठीक है। दूसरा, अगर मैं जब डेटा फैच करके ला रहा हूं और स्टोर कर रहा हूं अपने पास, तो मैं एरे में स्टोर कर रहा हूं, तो जो हम सेम पेज फिल्टरिंग बोलते हैं, राइट, एक ही पेज पर डेटा आ गया जो फिल्टरिंग करते हैं, तो एरे में सर्च करने की वजह अगर मैं सेट में स्टोर करता तो सर्चिंग मेरी फास्ट होती, राइट? तो वी हैव सीन दोस चेंजेस। तो अगर मेरे को पता ही नहीं है कि एरे में कहां यूज करना है, सेट कहां यूज करना है, तो मैं सिंपल एरे यूज करूंगा, राइट? मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे को पता है डिफरेंस, तो मैं सेट यूज करता उस जगह पर, और सेट यूज करता तो मेरा जो सर्च है वो स्लो नहीं होता एक टाइम पे जाने के बाद, एक साइज ग्रो होने के बाद, राइट? तो आई विल एडवाइज यू कि डेवलपमेंट के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज होना जरूरी है। जैसे मैं आपको सिंपल सा और एग्जांपल बताता हूं, जब आप कुछ भी सर्च करते हो, राइट, सर्च करने पर कुछ आपने गलत स्पेलिंग टाइप किया तो वहां पे डिड यू मीन करके लिखा आता है, एक सजेशन आपके सामने आता है। दिस इज ऑल्सो एन एल्गोरिथम। आपने जो सर्च किया, जो रॉन्ग आपने टाइप किया, उसको कैसे मैच करना है बहुत सारे वर्ड से, करेक्ट वर्ड से, और कौन सा करेक्ट वर्ड हमें शो करना है, इट इज एन एल्गोरिथम, राइट? तो अगर आपको उस एल्गोरिथम का नहीं पता है तो आप वो डिड यू मीन सर्च वाला फीचर भी नहीं बना पाओगे, ठीक है? आप एक रैंडम तरीका लगाओगे जो कि बहुत स्लो कर देगा आपकी सर्च को, एक गलत सर्च को, डिड यू मीन वाला जो फीचर है,
ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो मैं वही बता रहा हूं, डेवलपमेंट के लिए भी कोडिंग प्रिंसिपल्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक कोडिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स बोलते हैं, इनका पता होना जरूरी है, राइट। तो आपको क्या करना है, मैं आपको अगर एक छोटा सा तरीका बताऊं तो यू नीड टू वर्क ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, try to implement those data structures, then you need to learn algorithms also using those data structures, right? After that, when you are developing certain applications, कोई भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप देखो क्या आपके डेटा स्ट्रक्चर्स की जो नॉलेज है उससे आप उसको एफिशिएंट बना सकते हो, राइट। जैसा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम करते हैं, बिग ओ एन स्क्वायर को बिग ओ एन लॉग एन में सॉल्व करना, एन लॉग एन को एन में सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वही चीज यहां पर भी है, राइट। उसको सोचने का तरीका है। सेम थिंग इज हियर ऑल्सो, व्हेन यू आर डेवलपिंग अ लोकल होस्ट प्रोजेक्ट जो आपके लोकल होस्ट पे डिप्लॉयड है, उस पर भी उसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर। ये नहीं सिर्फ बन गया, सर्चिंग हो रही है तो हो रही, क्या हम इस सर्च को और फास्ट कर सकते हैं क्या मैं किसी और डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके, फर्स्ट थिंग इज। तो आपकी दो चीज इंप्रूव हो रही है, डेटा स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, राइट। एक नॉर्मल डेवलपमेंट से, एक नॉर्मल किसी ने वेबसाइट भी बना दी, उससे भी अच्छी आपकी वेब ऐप बन रही है, ठीक है। इस पे तो हम बात करते हैं, ये तो हमारे को जरूरी है ही है, ठीक है। सेकंड चीज अगर मैं आपसे बोलूं, इसके बाद हम बात करें कि अगर मैं इस लेवल पे काम करूं, ये आपको इसको हो सकता है शुरू के 1 या 1.5 साल लग जाए आपको इस पर काम करने में, ठीक है। शुरू का 1-2 साल आप इस पे स्पेंड करो। उसके बाद जब आपका 3rd ईयर या फाइनल ईयर आता है, देन यू कैन गो इनटू दिस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वाला पार्ट, राइट, जिसमें आप कंपीट कर रहे हो, लोगों से कंपीट कर, क्योंकि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से यूज करना आ गया है। और जब डेटा स्ट्रक्चर्स अच्छे से यूज करना आ गया है तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी इतनी टिपिकल नहीं होती है। हम होता क्या है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, आज आपको कंपनीज की टेंशन हुआ, आज आप पूछोगे क्या करना है, राइट। आज अभी नेक्स्ट ईयर आपकी कंपनीज आने वाली है, अब आपको टेंशन होना शुरू हुआ। 2 साल तो हमने निकाल दिया आराम से, ठीक है। 3rd ईयर में मेरे को टेंशन होना शुरू हो गया कि यार मैं क्या करूं, मैं अब हाउ शुड आई प्रिपेयर, राइट। तो आप मेरे को डेटा स्ट्रक्चर पे भी काम करूंगा, एल्गोरिथम, अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं डेवलपमेंट करूं या ये करूं। आप कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आप गलत समय पर ये क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। अगर आपकी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही अच्छी चल रही होगी तो आप ये क्वेश्चन कभी पूछेंगे नहीं, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू वर्क ऑन द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पार्ट इन योर फर्स्ट 2nd ईयर्स, राइट। देन विद दैट डू द डेवलपमेंट एज वेल। और 3rd ईयर में आप थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो शिफ्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटिव, अगर आपको कंपनीज क्रैक करनी है तो, ठीक है, सिर्फ कंपनीज क्रैक करनी है तो उसके लिए बता रहा हूं। अगर आपको बहुत अच्छा स्टार रेटर बनना है, कोड फोर्सेस पे एक्सपर्ट बनना है, तो आपको फिर पाथ अलग होगा। अभी मैं सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड करने के लिए बता रहा हूं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, जब आप सॉल्यूशन सबमिट करोगे तो कोडिंग राउंड्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप आसानी से सबमिट कर पाओगे, ठीक है। तो यू विल बी हैविंग द नॉलेज, एक अच्छी लेवल की नॉलेज होगी आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स की, और थोड़ी सी कम लेवल की नॉलेज होगी आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, which will be enough to crack the coding rounds of the companies, right? And then you will see that your journey has become very easy and smooth. I hope you have got the complete idea, so how you can focus on DSA as well as on development. So my next important question to you is that how to improve your logic building in DSA, because many students are really confused that they are practicing many questions but logic they are not able to build exact logic for that questions. So what is your opinion on that? So I would like to answer this question in a way that you don't have to focus on building your logics in DSA only, right? You have to develop a habit so that you are thinking logically on everything, right? Once you have started thinking logically, you will be thinking logically in DSA as well. So what you need to do is, if you see that I started one series, improve problem solving skills, right, which is there on Geeks for Geeks practice channel. So the motive of starting this series was, you need to observe the things that are happening around you, right? It could be simple mathematical magic, it could be simple trick you see in a magic show, right? So whatever you see, like, you should be thinking of what actually happened behind it, because I believe in one thing, that is, if you know the logic, there is no magic, right? There is magic till you don't able to figure out the logic behind it. So generally what happens, हम लोग बोलते हैं यार कि मेरे दोस्त के दिमाग में वो आइडिया कैसे आ गया, उसने तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी जल्दी से निकाल लिया, यार मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है ये मैजिक है, मतलब ये मैजिक है, उसके पास एक कुछ स्पेशल IQ पावर्स हैं, बट नहीं। लेट मी टेल यू, वो उस पर शुरू से काम कर रहा है। शुरू से काम कैसे कर रहे हैं कि जब वो छोटी छोटी चीजें भी देखता है ना अपनी लाइफ में कि ये एक मैथ का फॉर्मूला है, उससे आंसर निकल के आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, वो ये सोचता है,
राइट, ही इज थिंकिंग बिहाइंड इट। तो जितना भी हम देखते हैं सेम, हम एक ही बुक पढ़ते हैं सब लोग, एनसीईआरटी की सेम बुक हम लोग सब पढ़ते हैं, राइट, सेम कॉलेज में सेम बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, बट स्टिल देयर आर सर्टेन पीपल जिनका प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब जो अच्छे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर सर्टेन पीपल जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होती है उनको ही सॉल्व कर पाते हैं, या सर्टेन पीपल जो वही प्रॉब्लम फिर से पूछ ले तो नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज, सबने अलग अलग तरीके से उस सेम बुक को देखा हुआ है, ठीक है। किसी ने उस फॉर्मूले को सिंपल रटा, एक ने उस फॉर्मूले को सिंपल रटा है, एक ने उस फॉर्मूले को वो याद नहीं कर पाया अच्छे से, इसलिए वो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। और एक बंदा जो है उसने उस फॉर्मूले को समझा है कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में बना कैसे है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब वो उसको डिकोड कर पाता है। सिमिलरली मैं आपको बताता हूं, डेटा स्ट्रक्चर में आपको ये नहीं समझना है कि एरे में इंसर्शन मुश्किल है कि डिलीशन मुश्किल है, राइट, लिंक लिस्ट में इंसर्शन आसान है या नहीं है, आपको ये नहीं समझना। आपको ये समझना है कि ये ऐसा होता क्यों है, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। एरे में इंसर्शन मुश्किल क्यों हो जाता है, एरे में इंसर्शन डिलीशन मुश्किल क्यों है, लिंक लिस्ट में वो चीज आसान कैसे हो जा रही है, राइट, लिंक लिस्ट में जो यूज ही क्यों करना पड़ रहा है जब मेरे पास एरे था तो, ठीक है। सिंपल एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं अपने स्टूडेंट से जनरली पूछता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर लूप, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइल लूप, राइट, एंड आई कैन प्रूव यू, अगर सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में आप मुझसे बात करोगे, आई कैन टेल यू देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन विद फॉर लूप कांट बी डन विद व्हाइल लूप, एंड एनीथिंग दैट कैन बी डन विद व्हाइल लूप कांट बी डन विद फॉर लूप, राइट। तो जब डेवलपर्स ने ये ऐसा बनाया होगा तो दो लूप क्यों बनाए, एक ही लूप बना सकते थे वो, फॉर लूप या व्हाइल लूप, राइट। मतलब why they needed two types of loop, जब सारे काम फॉर से हो सकते हैं, while से भी हो सकते हैं, while से हो सकते हैं, फॉर से भी हो सकते हैं, तो दो लूप क्यों बनाए गए। ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है हमें, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आपको इस तरीके से सोचना है, और जब आप इस तरीके से सोचोगे तो आई कैन टेल यू, उसके बाद आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मेरे को लॉजिक बिल्ड, क्योंकि आपका लॉजिक बिल्ड हो चुका है। अब आप क्वेश्चंस पूछते हो चीजों के पीछे, जब हम चीजों के पीछे मेरे को पूरी क्लैरिटी हो जाती है ना, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता, और कंफ्यूजन नहीं रहते तो फिर मेरे को, और जब एक बार क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है तो फिर प्रॉब्लम किसी भी साइड से आए, किसी भी फॉर्म में आए, आई वुड बी एबल टू फिगर आउट, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक बेसिक पैटर्न से, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही जुड़ी होती है। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हमें क्या काम करना है, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करना है जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आप खुद सोचिएगा, मैं हर अपनी क्लास में स्टार्ट करने से पहले पूछता हूं, ठीक है, जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूं उससे पहले, तो उसमें देखिए, आपने अगर सी प्रोग्रामिंग किया है, राइट, वी ऑल हैव सीन कि उसमें हम %d यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में, %d एज अ टाइप स्पेसिफायर हम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, इंटीजर प्रिंट करने के लिए। %c यूज करते हैं कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए, %x हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करने के लिए। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि %q क्यों यूज करते हैं हम लोग, या %b क्यों यूज करते हैं हम लोग, राइट। जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन आई आस्क दिस क्वेश्चन, मेजॉरिटी फेल्स, राइट, मेजॉरिटी फेल्स। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि उनको टीचर ने पढ़ाया %d से इंटीजर प्रिंट होता है तो उन्होंने इंटीजर प्रिंट करना सीख लिया, उन्हें बताया %c से कैरेक्टर प्रिंट होता है तो उन्होंने कैरेक्टर प्रिंट करना सीख लिया। लेकिन कभी उन्होंने ये टाइप करके नहीं देखा कि %a से तो क्यों नहीं इंटीजर प्रिंट हो रहा, %d से इंटीजर क्यों नहीं प्रिंट, वो % जो है q से इंटीजर क्यों नहीं प्रिंट हो जा रहा, राइट, या % किसी और वैल्यू से, मतलब ना। तो हमें जो पढ़ाया जाता है हम उसको ही समझ लेते हैं और वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है। बट हमें थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव लर्निंग करना पड़ेगा, हमें चीजों को तोड़ करके सीखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि %d से इंटीजर प्रिंट ही ना हो, मैं तो %g से इंटीजर प्रिंट कराना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है? और जब मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि %g से इंटीजर प्रिंट नहीं हो सकता है, %d से इंटीजर क्यों प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आप किसी भी चीज से कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज यू विल नो दैट यस व्हाई इट इज हैपनिंग, राइट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको थोड़ी सी लर्निंग को डिस्ट्रक्टिव करना है। जैसे आपने डिस्ट्रक्टिव लर्निंग किया, आपका अप्रोच ही चेंज हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हो जाएगा और फिर लॉजिक बन चुका होगा अपने आप। तो जो भी कर रहे हो उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से सीखो थोड़ा सा। I hope many of you have got the idea how you can build the logic and how you can solve many questions after that. So thank you sir for this amazing answer. So my next question is that generally on YouTube nowadays competitive programming is really hyped. So is competitive programming really needed at the time of placements? What are your opinion on that? I hope I have already answered this question, Vasu, right? Because if you are looking for placements only, if you are only looking for placements, तो आपको उतने लेवल पे नहीं चाहिए, राइट। आपको बस इतना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी कोडिंग राउंड्स हो रहे हैं दे आर ऑनलाइन, राइट।
तो आप जब अपने क्वेश्चंस को सबमिट करो तो आप बेसिक एरर से ना जूझो। टीएलई हो गया, ठीक है, रॉन्ग आंसर्स क्यों आ रहे हैं, आप एज केसेस मिस तो नहीं कर रहे, ठीक है। जनरली क्या होता है जब हम पेन पेपर पे सॉल्व करते हैं ना, तो और जो इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट, वो हो सकता है कुछ एज केसेस मिस कर दे आपके केस में, लेकिन जब ऑनलाइन कंपाइलर पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उस केस में कंपाइलर कोई एज केस मिस नहीं करने वाला, उसके पास सारे एज केसेस पहले से, राइट। तो हमें वो आदत होनी चाहिए, हमें वो हैबिट होनी चाहिए जिससे कि हम ऑनलाइन कंपाइलर, क्योंकि कंपनीज ऑनलाइन कंपाइलर पे कोड करवाएंगी, और जब तक आप वो अपने सॉल्यूशन सबमिट नहीं कर पाओगे तब तक आप आगे क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर सिर्फ कंपटीशन क्रैक करना है, सिर्फ कंपनीज क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए टीएलईसीज कैसे रिमूव किए जाते हैं, टेस्ट केसेस सारे पास कैसे कराए जाते हैं, राइट, वो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बाकी तो फिर प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है वो तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वही आती हैं, राइट, उस लेवल की, उस मतलब मैं बोलता हूँ एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आती है प्रॉब्लम्स कंपनीज के हिसाब से अगर बात करूं तो, राइट। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना है वो फोकस ही अलग होता है, ठीक है। तो आपको पहले अपना फोकस सेट करना है और उसके बाद प्रिपरेशन करना है। So now coming to the GFG job portal, sir, can you please tell us that how can we get placed or get an internship with the help of GFG job portal, and can you please tell some more details about that? So generally what happens, GFG job portal जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो इसीलिए है कि आपको एक तो जब आप जहां पर, पहली चीज तो ये कि जब आप जहां पर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, जहां पर आप पूरा नॉलेज गेन कर रहे हो, वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाए एक ही जगह पर। यू विल गेट द कि अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं, कहां हम अप्लाई कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर विजिबल हो जाती हैं, राइट। देन एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स है, राइट, कि अभी क्या होता है कि कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी बहुत मैटर करता है, राइट। आपकी एक जेनरिक प्रिपरेशन तो जरूरी है। जनरली आप जिस कंपनी के लिए अपेयर हो रहे हो, तो अगर आप देखोगे कि ना हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है, एडोबी इंटरव्यू सीरीज, अमेजॉन इंटरव्यू सीरीज, राइट। तो उस अमेजॉन, तो इन कंपनी के में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, उसके लिए भी हमने ये सीरीजेस स्टार्ट किए हुए हैं, राइट। तो आप फिगर आउट कर सकते हो, जीएफजी पोर्टल को यूज कर सकते हो, वहां पर देख सकते हो कि आप किस कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उस कंपनी के स्पेसिफिक। तो हमने एक रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके हमारी एक सीरीज चलती है जिसमें कि Amazon के रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं, एडोब के रिसेंटली आस्क्ड, फ्लिपकार्ट के रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको भी हम डील करते हैं, ठीक है। तो जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो वी नीड टू बी कंपनी स्पेसिफिक। फर्स्ट थिंग, आप जेनरिक नहीं हो सकते। अगर आपको बोलते हैं ना कि भीड़ से बाहर उठना है, अगर आपको क्राउड से बाहर आना है, क्राउड में अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, तो आपको सबसे पहली चीज सीखनी है। वो क्या सीखना है कि आपको अपनी कंपनी सेलेक्ट करनी है। आप ऐसा नहीं है कि कॉलेज में कोई भी कंपनी आ रही, सारी कंपनी में बैठ रहे हो। आपको टारगेट करना है कि ये मेरी कंपनीज हैं, ये मेरे टारगेट्स हैं और ये मेरी प्रोफाइल है। प्रोफाइल भी मैटर करती है। मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट में कॉल सेंटर की प्रोफाइल पे नहीं जाऊंगा, कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल पे नहीं जाऊंगा, राइट। माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, 10 लाख का पैकेज दे रही है, लेकिन मेरे को प्रोफाइल क्या ऑफर कर रही है, कस्टमर सपोर्ट का, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब मेरे को यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी आ रही है, वो किस प्रोफाइल को ऑफर कर रही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मतलब मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि अमेजोन में ही सर होना है, मेरे को अमेजोन में जाना है। बट अमेजोन आई थी हमारे यहाँ सपोर्ट के लिए, राइट, क्लाउड सपोर्ट के लिए। तो अमेजोन सपोर्ट प्रोफाइल के लिए आएगा तो आप देखिए, एक तरीका है कि आप स्किप कर दीजिए, यार मुझे बैठना ही नहीं है, राइट। बट बैठना नहीं इज नॉट एन ऑप्शन। ही सेट फॉर दैट, राइट। ही क्लियर द रिटन राउंड। आफ्टर दैट व्हेन ही वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, he asked the interviewer that sir I want to go for SD profile, I don't want to go for this support profile, right। मैं इसके लिए नहीं बैठना चाहता। तो are there any chances? If there are, you can let me, like we can proceed, otherwise I'll leave this room। So this much confidence you must have, and you won't believe they conducted a special round of interview for it. They conducted 2 rounds of interview for him, right, and he was selected at SD profile from the same college। So कंपनी कॉलेज में किसी और प्रोफाइल के लिए आई थी, बट आपने क्रैक किया। तो एक तो ऐसा तरीका होता है कि हम बोल दे यार नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये प्रोफाइल। एक तरीका होता है कि यस आप जाइए, बात कीजिए, नेगोशिएट कीजिए, और वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तब आप क्रैक करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, थिंग्स हैव बिकम इजी। आपको क्या करना है, आपको पहले तो कंपनी सेलेक्ट करनी है जिसमें जीएफजी जॉब पोर्टल आपकी हेल्प करता है। वहां पर आप जाके देखिए कि कहां कहां पर मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको, और उनकी प्रोफाइल देखिए। सबसे पहले प्रोफाइल, नाम, ब्रांड के साथ प्रोफाइल भी मैटर करता है। डोंट मिस इट, राइट, कि मैं किसी और जगह जाकर के कुछ और काम तो नहीं कर सकता। मतलब तो अगर मैं देख रहा हूं तो अपने काम मेरे पसंद का नहीं होगा, तब तक मेरे को मजा ही नहीं आएगा, राइट। तो अगर मेरे को टेस्टिंग पर पकड़ा दिया या कोई भी टेस्टिंग मेरा इंटरेस्ट का नहीं है, राइट, तो मैं वहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा,
ठीक है, तो आपको इंश्योर करना जीएफजी जॉब पोर्टल आपकी हेल्प इसमें जरूर करेगा। उसके बाद जब आप अप्लाई करते हो देन देयर आर ऑफर्स फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल, देयर आर ऑफर्स फॉर जॉब्स एज वेल। तो you can look out the name, the brand, the profile, and definitely you can target them. I hope you have got a complete idea about the GFG job portal and how you can be benefited from that portal and get an internship or a profile or a SDE profile job. So my next important question to you is that as you know, many websites have launched many courses of C++, Java, Python and all the stuff related to computer science. Then how GFG courses are a bit different from them and how students are being benefited who are taking these courses. Do you have any examples of that? First thing is when we talk about students ना, तो हमें students की pocket जरूर चेक करनी होती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग टू प्रोफेशनल्स, आई एम नॉट टॉकिंग टू दोज पीपल, राइट। तो प्रोफेशनल से मैं बात करूं तो मैं उनको उनके लिए 10,000 20,000 का कोर्स रिलीज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स के लेवल पर देखता हूं तो मेरे को स्टूडेंट्स की पॉकेट चेक करने में जीएफजी इस चीज को सबसे ज्यादा देखता है, राइट। आपने देखा होगा जीएफजी हैज स्टार्टेड विद लाइक प्रोवाइडिंग दीज थिंग्स फॉर फ्री, बट देर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। तो उसके लिए कोर्सेज का लिए एक मिनिमल अमाउंट हम लोगों ने रखा हुआ है। अगर आप देखोगे जीएफजी के प्राइजेस को अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि प्राइजेस कंपैरेटिवली लो है। मतलब हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम से कम प्राइस यहां पर हम अपने कोर्सेज का रखें जिससे कि स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड देम। तो हम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं कि कंटेंट जो मिलेगा आपको इट हैज बीन डेवलप्ड बाय एक्सपर्ट। तो अगर मैं एक बात करता हूं आपसे कि मेरे एक लो लेवल डिजाइन का एक कोर्स है, राइट। तो हमने क्या किया कि हमने थोड़ा सा ऊपर उठ के उसमें एनिमेटेड कंटेंट डाला जिससे कि हम ये विजुअलाइज कर सके। क्योंकि क्या होता है कि रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब तक हम विजुअलाइज नहीं करा पाएंगे, ठीक है, जब तक मैं आपको इमेजिन नहीं करा पाऊंगा। देखिए एक स्टूडेंट और दो स्टूडेंट में डिफरेंस कहां पर आता है। एक स्टूडेंट सेम सिचुएशन को इमेजिन करता है दूसरे तरीके से, दूसरा स्टूडेंट उस चीज को इमेजिन नहीं कर पा रहा है, और इमेजिन नहीं कर पा रहा तो वो सॉल्यूशन नहीं फिगर आउट कर पा रहा। जिसने इमेजिन कर लिया वो सॉल्यूशन फिगर आउट कर लेता है। दिस इज व्हाट वी बिलीव इन, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू प्रोवाइड परफेक्ट एग्जांपल्स, परफेक्ट विजुअलाइजेशंस, राइट। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, मतलब मैं परफेक्ट इसलिए बोलता हूं कि बिकॉज वी स्पेंड टाइम ऑन सर्टेन एग्जांपल्स। लाइक अगर मेरे को कुछ भी इनपुट आउटपुट भी देखना है, ठीक है, या कोई एग्जाम्पल भी लेना है तो उसके ऊपर हम पूरा टाइम लगाते हैं। उसके बाद उस एग्जाम्पल को हम इंक्लूड करते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कि वो बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम्पल है या नहीं। तो आप जितने भी कोर्सेज जीएफजी पर देखोगे उसमें हमने कोशिश ये की है कि अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ आपको उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कराया जा सके, जिससे कि आप उसे रटे ना, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। और वो समझ में आ गया तो हमारा 50% टास्क हो जाता है। उसके बाद आपके लिए चीजें और समझना आसान हो जाता है। तो एक चीज हमारी है कि हमने कंटेंट पे काफी काम किया है। अगर आप कोर्सेज कोई भी कोर्स हमारा देखोगे तो यू विल सी यस द कंटेंट यू लाइक, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस चीज को, मतलब मैं इसको नहीं बोलता हूँ। लेट मी आप एक बार चेक कीजिए और आप वेरीफाई कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। हमारा कंटेंट आपकी उस एक्सपेक्टेशन को मीट करता है या नहीं करता है। तो कंटेंट पे क्योंकि हम बहुत ध्यान देते हैं। मतलब आप देखिए 6 months वी हैव टेकन टाइम टू डेवलप वन कोर्स, राइट, और जिसकी कॉस्ट है 499, राइट। तो आप सोच के देखो हाउ मच टाइम वी आर स्पेंडिंग टू डेवलप अ कोर्स जिसकी कॉस्ट है 499, राइट। तो मतलब हम तो उसमें कुछ अगर मैं बोलूं तो अभी आरओआई की तो बात ही नहीं करते हम लोग, ठीक है। बस ये है कि हम डिलीवर अच्छे से कर पाए और आपको जो है वो चीज दे पाए जो आपकी एक्सपेक्टेशन उसको मीट कर पाए। So this is our main focus at GFG and which differentiate us from the others also. So I hope you have got a glimpse of how GFG courses are really different and pocket friendly to students. So my next important and the major students have doubt in this that which programming language is best for placements, because many students are really confused that should they learn C++ or Java or Python for placements and they should code in that language. So what are your opinions on that? I totally agree with you. This is again a major confusion among the students, right? तो पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, when you are going to be computer science student, right, you are going to work in IT industry, तो इस confusion को निकाल दीजिए कि मैं किस लैंग्वेज पे बाउंड रहूं। आपका स्किल सेट बाउंड नहीं हो सकता है, क्योंकि आज अगर आप C++ या जावा पे या पाइथन पे काम कर भी रहे हो तो हो सकता है जब आप इंडस्ट्री में मूव करो तब तक गो, एयरलैंग और अदर लैंग्वेजेस माइट भी देयर इन द मार्केट।
तो यू नीड टू बी ओपन फॉर, क्योंकि आप भी अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम किया है तो आई कैन टेल यू आपको डिफरेंस ज्यादा मिलेगा नहीं, थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, बाकी वर्किंग फंक्शन कॉल कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं मेमोरी में, हीप में, स्टैक में कैसे स्टैक फ्रेम्स बनते हैं, ठीक है, मेमोरी में हीप में कैसे ऑक्यूपाई होती है, रन टाइम मेमोरी, ठीक है, मतलब डायनामिक मेमोरी कैसे एलोकेशन होता है, स्टैटिक मेमोरी का एलोकेशन कैसे होता है, जनरली द थिंग्स आर सेम, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो उसको अगर मैं छोड़ दूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक वर्किंग जो है वो लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। अब मेरे को ना बाउंड नहीं करना अपने आप को किसी भी एक लैंग्वेज के लिए कि भैया मैं C++ का प्रोग्रामर हूं, C++ ही करूंगा, क्योंकि अगर आप आईटी में हैं तो आप देखिए मोबाइल की मैं बात करता हूं, मोबाइल के जो वर्जन्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉइड के, राइट, हर 6 महीने में 8 महीने में आपको नया वर्जन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये बोल दो नहीं मैं तो एंड्रॉइड के जेली बीन पे ही काम करता था, जेली बीन का डेवलपर हूं, तो कंपनी आपको तुरंत निकाल के बाहर कर देगी। जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे यू कैन नॉट स्टिक टू समथिंग। आज आप बोल सकते हो नहीं मैं C++ प्रोग्राम हूं, C++ में कोड करूंगा, ठीक है, लेकिन जब आप कंपनीज में चले जाते हो तब आप स्टिक नहीं हो सकते एक चीज पर, आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के लिए तैयार होना होता है। और आईटी के संग ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बोल सकता हूं या मैं इसको अच्छी चीज भी बोलता हूं, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेता हूं कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं हमेशा नया सीखने के लिए और नया करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज आपको बाउंड नहीं करना, अपने आप को ये सोचना नहीं है कि मैं एक ही लैंग्वेज पे काम करूंगा। अब अगर बात आती है कि प्लेसमेंट के लिए मुझे तैयारी करनी है तो मैं किस पे करूं, तो मेरी जो चॉइस रहती है, अगर आप देखोगे मेरे जितने भी सेशंस हैं मैं उसमें यही बोलता हूं, आप अपने फर्स्ट ईयर में पाइथन सीख लीजिए, ठीक है। जब आप फर्स्ट ईयर में पाइथन सीखते हो ना तो आपको एक चीज पता लग जाती है कि इंप्लीमेंटेशन बहुत आसान है चीजों का। आप देखोगे सेकेंड ईयर में ही आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने लग जाओगे। जब आपने फर्स्ट ईयर में पाइथन किया तो आप, क्योंकि पाइथन क्या करती है आपके लिए रास्ते बहुत ओपन कर देती है। आप अपने थर्ड ईयर में एमएल में जाना चाहते हो, क्लाउड में जाना चाहते हो, डीआई में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ सामने खुल जाते हैं क्योंकि लाइब्रेरीज इतनी है इसकी, ठीक है। बाकी अगर आप C++ उसके बाद जैसे आपने देखिए कोई भी प्रॉब्लम मैंने आपको दिया, अगर आप उसे पाइथन में कोड कर पा रहे हो, ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन आपको पता है, लॉजिक आपका बिल्ड है। आपको लगता है मेरे को इसको फास्ट बनाना है, थोड़ा सा और तेज करना है, मतलब मेरा सॉल्यूशन फास्ट नहीं है, ठीक है, वो पाइथन की वजह से स्लो हो रहा है, ठीक, तब आप एक लैंग्वेज जावा या C++ कोई भी पकड़ सकते हो और उस कोड को आसानी से उस कोड में कन्वर्ट करना सीख सकते हो। जैसे मैंने डिक्शनरी यूज किया हुआ है, उसमें आप हैश मैप यूज कर सकते हो, राइट, ट्री मैप यूज कर सकते हो, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, एक बार अगर आपने कोई भी लैंग्वेज, मतलब देखो सॉल्यूशन तो एक बार दिमाग में आना है, वो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कर लिया तो आप किसी भी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर पाओगे। तो आपको अगर जर्नी बहुत स्मूथ रखनी है, बहुत अच्छी से रखनी है, मतलब आज की डेट की बात कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता 1 साल बाद ये क्या हो सकता है, इट वुड चेंज, लेकिन आज की डेट की बात करूं तो स्टार्ट यू लर्न पाइथन इन योर फर्स्ट ईयर, यू विल सी द मिरेकल्स हैपनिंग इन योर सेकंड ईयर, राइट। एंड व्हेन यू एंटर टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, थर्ड ईयर में जो मैंने बात किया, जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे उस टाइम पर जो कोड करो और उसको कन्वर्ट करना सीख जाओ किसी एक लैंग्वेज में, जावा में या पाइथन में, तो आपकी सब चीज हो गई, आपका डेवलपमेंट भी हो जाएगा, आपका जो है सीपी भी हो जाएगा, दोनों चीज आपका हो जाएगा। और जब आप कंपनीज आए तो अगर कोई कंपनी पाइथन अलाउ करी तो पाइथन में सबमिट कर दो, कोड को नहीं अलाउ करी तो आप जावा, तो आपको आती है जावा में आप सबमिट कर दो, तो आपके लिए सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। Okay, so I hope you have got the plenty of idea that which programming language you should start with in your college life. So my next important and the last question of this amazing podcast is that will GFG start any development courses like front end, back end, or something related to, you can say that AI ML courses? We do have the full stack development courses on our platform and we have started the web development channel as well. अगर आप देखोगे, ठीक है, जिसमें we will be telling you what are the latest things that are happening in web development, right? तो अगर मैं development की बात करूँ तो yes, our focus has been moved from those like classical computer science problems to yes, the courses on developments we have moved on to it and soon अगर आपको थोड़ा सा और अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो टू आवर कोर्सेज पेज, जो हमारा प्रैक्टिस पोर्टल है, यू विल सी द कोर्सेज टैब ओवर देयर, उस पर आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन सी दैट वी हैव द ML AI कोर्सेज ओवर देयर एंड there are the recorded versions as well. If you want the recorded classes, it is also there and you can register for live classes as well. We do conduct the live classes so that you can ask your like okay, in recorded videos also recorded like we do call them self-paced courses, right? The recorded videos courses.
So in self-paced courses, if you enroll, still you get the doubt support. So one question you were asking, that what is the difference, like why our courses are different, that we provide the real-time doubt support. So anytime you have any queries, you can ask, like one TA will be assigned to you and you can ask your queries to him and that will be solved immediately, right? So, and if you want to have real live teaching experience, you can go for live classes. So both the versions we are providing. And yes, answering to your question, we do have development courses and you will get more of them. You will see more of them in the near future. So thank you, sir, for such amazing answers that you have given to all the students having doubt related to job interview preparation. So through this video, we have really cleared almost all the doubts of the students who are really studying in college and who have doubts about the complete job interview preparation process. So I would really thank you, sir, for coming to my channel for this podcast. If you really like this content, do share it with your friends so that the doubts are really cleared for them. So thank you so much.